चेत तत्रापि व्यतिरेक अनवस्थिते अनपेक्षत्वात् अन्यत्र अभावात् न गुणादिवत् अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात् पुरुष अस्मवत् इति चेत् तथापि अग्नित्व अनुपत्तेः अन्यथा अनुमितौ न्यशक्ति वियोगात् विप्रतिषेधात् असमंजसम् 11 महद्दीर्घवत् ह्रस्व परिमण्डलाभ्यां महद्दीर्घवत् वा ह्रस्व परिमण्डलाभ्यां उभयथापि न कर्म नींद आ रही है मेरे को, मैं अभी सो रहा था। स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट कर दिया आप, जब कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। बाबू विक्रांत कर दिया सर, मैंने स्टार्ट कर दिया। हेलो अरे बाबू वो विक्रांत, अरे इधर ही सो जाओ। हेलो अरे तुम आधा निमित्तत्वात् उत्तरोत्पादे पूर्वनिरोधात् असति प्रतिज्ञा उपरोधः यौगपत्यम् अन्यथा प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्तिः अविच्छेदात् उभयराज घोषात् आकाशे च विशेषात् अनुस्मृतेश्च हरि ओम। आरंभः
We now welcome respected Professor Ramlu Garu from Osmania University. He was a professor of Sanskrit for over 4 decades, and he headed the department of Sanskrit. Now he looks after the Prabhati Shanti. They conduct several programs, Sanskrit studies. He had his basic PhD research work in Purva Mimamsa, Bharata Prabhakara difference. Study was on Bharata Prabhakara Mimamsa difference. Published more than 20 books and several works on Vedanta. Ramaraya Kavi is a South Indian known Advaitin who critiqued or developed the Ramaraya. Well-known critique. Very bright and brilliant, died of a very short age, but had 110 words. चालू में कोई काम नहीं है. Or 40, 110 words on Advaita. You will find extreme subtle logic employed by Ramaraya in critiquing all schools of Indian philosophy, and holds on to Shankara's tradition. You come across very good, subtle logic employed by him in his words. You also happen to write a paper, look into his words. There are several. So he translated almost some 10 such books into English. Yeah, Professor translated 10 such books, independent works, Sarkasangraha, Pankutarikas, and Yoga Darshana, several books. So, may I now request Professor Ramlu Garu, can you listen to us? Yeah, please. You have 1 hour time, and then some time for interaction. Okay, thank you. Thank you, Natal. एतं मम प्रमोदस्थानं यत् सर्वे तत्त्वशास्त्र विभाग विद्यार्थिनः अत्र समुपगताः. श्रूयते? एतत् मम सौभाग्यं यत् for philosophy students I am speaking in general Sharirika Bhashya Chatusutri. Vedavyasa named the sutras as Brahma Sutras. Wherever Shankaracharya Bhashya named as a Shariraka Bhashya. The difference between Brahma and Shariraka. Brahma, everyone knows, Supreme God, Parameshwara. God is the real meaning also. Generator, organizer, destroyer. Brahma. Shariraka, Shankaracharya changed from Brahma Sutra to Shariraka Bhashya, titled Shariraka Bhashya. Sutra, everyone knows that one. They are very short, suggestive forms. Commentators, they will elaborate them. The best commentary, that will be only one, that is called Bhashya, which comes first, and whom writes the original Sutrakara's
mind. It is not so easy to write Bhashya. The Bhashyakara has to do the Parakaya Pravesham. He should not think that when he is Shankaracharya. While writing the Bhashyam, he should consider himself as Vedavyasa. Then only he can go to Vedavyasa's heart and mind. What is the intention of those sutras? Very deeply he should meditate. Then he has to write the Bhashyam. Sutraprayam is very short and very simple. But now the commentator should elaborate. Very difficult task. He should go to the Vedavyasa. He should become Vedavyasa, not go to the Vedavyasa. He should become Vedavyasa. What is the Sutrakara's intention about that sutra? Every sutra. Sutra, you know the definition. Alpaksharam, asandigdham, saravat, vishvato mukham, astobham, anavadyancha, sutram, sutra vido viduhu. Alpaksharam. There are very few letters. Asandigdham. There is no ambiguity. Clear, crystal clear. Saravat, which will be carrying the essence, meaningful. Vishvato mukham. As we interpret, there will be thousands of meaning should come out. Astobham, anavajjancha, there is not a small letter also condemnable. That is called a sutram. That type of sutras are written by Vedavyasa. One of the 24 incarnations of the Mahavishnu. In Sanskrit literature, if you put the Vedavyasa literature one side and all other literature one side, then also Vedavyasa's literature is heavy and it is great. More than 50% goes to Vedavyasa only. What not he has written? He has written Brahmasutras, 555 sutras describing what is Brahman. What is ultimate reality? Satyam, Paramasatyam, supreme truth, final word. Great. That type of person is Vedavyasa. While writing commentary on that one, before Shankara, we will not find any commentaries. He has written a elaborate, beautiful, thoughtful, knowing the heart of the Vedavyasa. Shankaracharya wrote the Shariraka Bhashyam. His sutras are Brahmasutras, describing the Brahman. But this Bhashyam is Shariraka Bhashyam. Bhashyam, you know, great commentary. Sutrartho varnyate yatra padaihi sutranusaribhihi. The meaning of the sutram
If possible, verbatim also, not only meanings, with the words also. He should explain the meaning of the sutram. That is called bhashyam. The exemplary example is Shankaracharya's bhashyam. He titled it as Shariraka bhashyam. Shariraka. Sharire bhavaha sharirakaha. Who stays in the body. That is soul, Atma, Jivatma. Describing the Jivatma's nature. What is the nature of the Jivatma? What we are considering, is it a correct or not? What is he actually? That type of deep discussion, truthful. He has to bring out the truth. What is the truth of that soul? What is the nature of the Jivatma? Whether Jiva is considering himself as a body, is it correct or not? That is the question. In the first sutram, as I informed you, 555 sutras written by Vedavyasa. The first sutram is Adhato Brahma Jigyasa. Adha Ataha Brahma Jigyasa. If you go all the darshanas also, generally they will start with the Adha Shabdam only. Even the Mimamsa started Adhato Dharma Jigyasa. Even Patanjali also Adha Yoganushasanam. Because they said that when as Pranava is pious, the Adha Shabda also so much pious. That way they interpreted. But in this sutram, Adha meaning is not beginning, unlike in other philosophies. What is the meaning of Adha? Shankara clearly says, Sadhana Chatushtaya Anantaram. He explains the Anubandha Chatushtayam of his work. Every author or every writer writing a book, first he should explain the Anubandha Chatushtayam. Without explaining them, nobody should write any work. So that way Shankara also emphasizes on the Anubandha Chatushtayam in this first sutra. What are the Anubandha Chatushtayam means 4. What are the 4 Anubandhas, prerequisites? What are they means? Means automatically while linking with the word, Anubandha means with the work the 4 are associated. Number 1 is Adhikari. Adhikari means a qualified person to study that work. All are entitled, or he should possess some prerequisite. That is the question. Then he says, who is qualified person to study is Shariraka Bhashyam. Adhikari. Next is Vishaya, subject matter of the Shariraka Bhashyam. And Sambandha. Earlier he had little knowledge. Now he is going to acquire some more knowledge. The relation between both previous knowledge
and to be acquired knowledge. What is the relationship between them? And the last but not least, purpose. If you study Shariraka Bhashyam, what we will acquire? Prayojanam, result. You see, before studying Shariraka Bhashyam, I am like that one. After studying Shariraka Bhashyam, now I am, whether I have changed, whether I have been elevated to some status, or whether I have possessing some good qualities, or whether I am taking away bad qualities from me. That is the result. Studying of the philosophy is not a theory here. In India, Tattva Shastra Adhyayanam, it is not sitting in the armchair. Just Adhyayanam, no. It is not only meant for study. You can do it study. At the same time, you should practice those good qualities. Elevate some bad qualities. What you are learning, you should put into the practice. So that type of person is adhikari. He has given a single sentence, if you want to say, who is qualified to study Brahmasutra or Shariraka Bhashyam means sadhana chatushtaya sampanna. One should have the 4 types of the 4 requisites. Whether we have those things or not, we have to self-examine. If we have those 4, we are eligible to continue our philosophical study. If we do not have, first we should cultivate those 4 qualities. We should learn first those 4 qualities. Then we can study the Shariraka Bhashyam. What are the 4 requisites? Means he clearly said, everyone knows that one. These are the basics in Advaita Vedanta. Sadhana Chatushtayam. Number 1 is Nitya Anitya Vastu Vivekam. What is eternal? What is transitory? What is permanent? And what is momentary? Nitya Anitya. What we are seeing, whether this will exist lifelong, that we should examine. What we are seeing, the world, whether it is a perishable or non-perishable, whether it is a permanent or transitory, we should examine it first thing. That is called Nitya Anitya Vastu Vivekam. Outwardly, appearance may not be true in all things. For example, if you take the glass of the milk, in that glass, water is more than the milk. So you should differentiate what is the percentage of the water, what is the percentage of the milk. Like Swan does, Hamsa, Shiranyayam. That way, what we are seeing, the universe or world, whether it stays permanently or whether it is a perishable,
Nityam and Anityam. What is eternal? Samsaram is Nityam or Parameshwara is Nityam. We should logically we have to come to the conclusion, and that is called Nitya Anitya Vastu Vivekam. Second is Iha Mutrartha Phala Bhoga Viragam. In this world, Iha Phalani, Aihika Phalani. We are seeing some comforts in this world. Sukha. If you wear a garland, you feel happy. If you apply the sandal paste, you feel happy. If you have the company of a desired person, you feel happy. Whether these are permanent or temporary, we have to think. Srak Chandana Vanitadi Sukham. Is it really Sukham or outwardly looking like a Sukham? That way these are the things we are seeing practically, but some are we are listening. Example is going to the heaven, taking the Amrutam, dancing with the Apsarasa. These are we are listening only, we are hearing. So Amushmika Phalani. So we should develop Vairagyam in Aihika Sukhas as well as Amushmika Sukhas. So that is called the second one, Iha Mutrartha Phala Bhoga Viragam. And the third one is Shamadhi Shatka Sampatti. We should have 6 good qualities. Shamam, Damam, Uparati, Titiksha, Samadhanam, and Shraddha. Shamaha, controlling of the mind. Mind is fickle, everyone knows that one. Vayoriva sudushkaram. It is impossible to control. Actually, all these Shastras, including the Vedas, they have come with only single point agenda. That is, Shamartham Sarva Shastrani Nirmitani Maharshibhihi Sayeva Sarva Shastrajnaha Yasya Shantam Manaha Sada. All this spiritual literature has come with the single point agenda to give the Shamam, control of the mind, to all the persons. What is the purpose of the study of the spiritual literature? Means controlling of the mind. Controlling of the mind. Atmodhara. So that is called Shamam. Controlling of the remaining sense organs, Damam. Uparati. Non-attachment with the worldly things. Titiksha. Shitoshnadi Dvandva Sahishnutvam. We should take both. Dvandvas are equal. Either cold or heat, both are equal. Either happy and misery, both are equal. Either appreciation or criticism, both are equal.
in always also maintaining the same status. That is called titiksha. Next is samadhanam until shraddha. What you are doing, you should do with shraddha. So these are called shamadhi shatka sampatti. And the last one is mumukshutvam, desire for emancipation, liberation, salvation, what you call it, moksham. We have to come out from this bondage. How many years, decades, centuries, how many births? We should be like slaves in this bondage. Samsara, bandham. We should come out from this bandham. So this way, adha means sadhana chatushtaya anantaram. These 4 requisites are required to study the Shariraka Bhashyam. First, you should possess all these 4 qualities. Then you starting with the Shankara's Shariraka Bhashyam. Very simple, truthful. What he has seen, that he recorded in this one. Ataha, hence, Brahma Jignasa. He should have the desire to know the Brahman. What is God? What is Supreme God? Who is the creator, protector, as well as destroyer of this entire world? We should know that one. So that way he starts with the inquiry about the Brahman. The first sutram, adha, ataha, Brahma Jignasa. He goes very deeply in that one. Actually speaking, Brahma Satyam Jagan Mithya, he used the Midhya word. Midhya means what all are thinking. Mithya means it is like a false. No. Mithya means not false. There is no difference between Satyam and Mithya, actually speaking. But Shankara wants 2 terms for 2 things. For that purpose, he said Brahma Satyam Jagan Mithya. Here the terms may be different, but the meaning is same. For us, as God is existing, that way our world also existing for us. We are considering our bodies as ourselves. So practically speaking, Mithya means not false. It is false for only few persons. Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda, Ramana Maharshi, or you take Shankara Deva, Chandrasekharendra Saraswati, you will count a few. For them, it may be, but for us, we are seeing everything. So Shankara's intention, Mithya, means totally not existing. It is existing for 99% of the people. It may not be existing for 1% of the people.
So when he says Brahma Satyam or Jagan Mithya, for us, Satyam and Mithya both are equal words only. As we are seeing God in the statues or images, Savigraha, that way we are seeing the world also. So there are two different words maybe, but meaning is almost the same. For few people that I accept it. Those might be very less percentage who actually studied Vedanta, means they are what they have studied, they have put into the practice. Study meant for practice, not for study and to leave it that way. Okay, anyhow, Adha, Ataha, Brahma Jigyasa. After knowing the philosophy also, if a person behaves like other person, there is no difference between animals as well as the human beings. Shankara says in this bhashyam only, Pashwadivat pravrutte. After studying the Brahmasu or Shariraka bhashyam, you should behave like a wise person. Otherwise, like a Pashwadi pravrutti, Shankara very clearly says, after studying the philosophy and after studying the Vedas also, you behave like an animal. There is no difference between animal and human. What is the use of studying the scriptures and the spiritual literature? As an animal also, seeing a person with a stick, that frightens. If a person comes with the grass, that will be attracted. Like that when you also, a person is coming with the lathi, you fear. If a person is offering a cup of coffee, you enjoy. What is the difference between the animal as well as the human beings? Panditas, after acquiring the knowledge also, if there is no difference, what is the use of the study of the Vedanta? He put the question and he answers also. We should, what we have acquired the knowledge. Knowledge is not meant for the knowledge's sake. It is meant for the practical purpose. You should practice what you have acquired on that day. You practice it. Practice makes a man perfect. You should develop, you should elevate to ordinary person to extraordinary person. Day by day, you should possess some what philosophy taught. Daya, Anasuya, no jealousy, always happy, helping to others, that type of qualities you should possess. Then you should be different from the animal. He indicates in that one. So one should know about the Brahman. It is the duty of every person. And he should know about himself also. Ramana Maharshi always used to tell all the persons, you should know yourself, that's all. Who are you? First you put the questions to you and to get the answer. Enough, that is enough. So what you are considering, whether it is a correct or corrupt, Shankara here gives 9 varieties of adhyasa.
What is adhyasa? Atasmin tadbuddhi adhyasaha. It is not that one actually, but you are thinking that is. Body is not Atma, soul, but you are considering I am body. That way he has given the 9 types of adhyasa. Illiterate people, they consider their children are their souls. Starts with that one. So whether it is adhyasa means almost imposition. We are imposing. It is not true. We are hiding the truth. And we are imposing some other thing on that one, and we are seeing that upper one, and we are considering that is the truth. There, you are doing a wrong thing. You think about it, what is adhyasa? What is the reality? What is the satyam? Is it world? What we are seeing, is it correct? That way he puts the question, and the answer is adhato brahma jignasa. Everyone should try to know what is Brahman, what is Supreme God, who is Supreme God. So that way the first sutram always emphasizes that one. Every human being who has born as a human, it is his prime duty. That one, what is Brahman? He should know. Now he goes to the second sutram and he says that one, what is Brahman? The definition of the Brahman, that is second sutram he gives that one. What is Brahman? The sutram is, second one is, Adhato Brahma Jignasa. I have given first one. Janmajyasya yataha. That is second one. Even the Srimad Bhagavatam starts with this shlokam only. Janmadi asya yataha. Asya, pointing out to this world, what we are seeing. World means not only world. In Telugu, we have one poem. Mattika adoi manushyuloi. The world means not the surface. Who are existing in this also, they also called the world only. Whether human beings or animals or flora and fauna, everything will come under this world only. Asya, of this world, who has created this one, that is called Supreme God. That is called Brahma. Janmadi asya yataha. Asya, of this world, Janma adi, birth, etc. Janma means birth, everyone knows. Adi, etc. What are the etc. means? Shankara clearly said. First is birth, second is staying, and the third one is destruction. Janma, sthiti, marana.
or pralaya. You write down Janma, Sthiti, and pralaya. Janana, Sthiti, pralaya. First is birth. Second is staying, Sthiti. And third one is pralaya. Layam, destruction. Once you have taken the birth means death is compulsory. As a birth, death is invaluable, that one, compulsory. Compulsory, you have to go that one. There is no exception. In between birth and death, that is called sthiti. Janma, sthiti, marana. Who is doing all these three to the world? He is called Supreme God. Janma jasya yataha. By whom these three things are happening, he is called God. Generator, organizer, and destroyer. Janma jasya yataha. Here is, one may ask that one, in the Nirukta of Yaska, he said that one 6 stages. But Shankara here restricts to only 3. Jayate, Nirukta in the Yaska, he said, everything or everyone has to go 6 stages of the life. What are the 6 stages? Jayate, Asti, Viparinamate, Vardhate, Apakshiyate, and Nashyati. Jayate, first takes the birth. Next is Asti, exists. First, before birth, that was not there. That has to taken the birth, first one. Next is existence. When that is taken the birth means next that is existing. Jayate, asti. Third is viparinamate. There is a change. When that is taken birth, on that time that was a very teeny, very too small, but there is a viparinamate, change. Next is vardhate, developing. When a person is taken the birth, very small baby, but later on he developed a full human being. Viparinamate, change afterwards. Vardhate, developing. As development after half of the years, that should go in reverse form. Apakshiyate, decaying slowly. And the last one is nasyati, that totally that is going away. As Yaska said, 6 stages, but you are saying only 3, Janma, Sthiti, and Pralaya. Why that difference? He puts the Purvapaksham and answers, all the 6 are covered by these 3. It is the greatness of our Shastrakaras, in anticipation of the objections, themselves they will put the objection and answer also. Hereafter, it is possible to ask somebody. That type of objections, they will think and make as a Purvapaksham and answer also. There is no chance to criticize anything by the critic. All the objections, they will first only guess it
and answer it. That is greatness of all the Shastrakaras. Recently, we have seen one person as if he is a greater than all the Shastrakaras. In the grammar, he said that in what Patanjali and others not revealed, I am revealing. You see the Patanjali's Mahabhashyam, how much he has written. What you are saying today, 2005 years back only, already he has answered. Your objection also, he has taken as a Pura Paksha and he has already answered. So you have not studied that book. That is your mistake. Yada yenam anto na pasyati naishasthanoha aparadaha. If the blind person has not seen the pillar, it is the mistake of the blind person, not mistake of the pillar. So you should not criticize those great saints and bhashyakaras in anticipation of objections. They should put the objection and answer also. Here also clearly said Shankara. Yaska said 6 types of the stages. Jayate, asti, viparinamate, vardhate, nashyati, lost. But you have said janma, sthiti and pralaya. In anticipation of that Purvapaksham, he answered clearly what Niruktakara Yaska said, all the 6 also undercome in this 3 only. So, the birth, sustenance, as well as destruction of the entire world, who is doing? That great person is, great power is Supreme God Brahman. Janmadi asya yataha. Asya, of this world. Janma adi. Janma, sthiti, pralaya. These 3. By whom these things are done, that is the Supreme God. So that is the second sutram of our Shankara Bhashya. And the question is, who has seen that one? He has created this universe. Who has seeing that one? He is protecting the universe. Who will see that one? This entire universe will be dissolved by that person only. The answer is Shastra Yonitvat. Shastram, verbal cognition. All the Upanishads are very clearly saying that when Yatova imani bhutani jayante yena prayancha bhisham visanti. By whom the entire world is created, and at the proper time it was put into himself only. That is Supreme God Brahman, Shastra Yoni. So how do you know that when this Parameshwara has created the universe? Parameshwara is protecting the universe. That Supreme God is, at the time of Pralayam, he will put into himself. There the proofs are Shastrani. Shastrani means Upanishads, scriptures, spiritual literature. That is the answer. Here also, possible Purvapaksham is, existence of the God is proved by the inference, anumanam. For example, if you see the chariot,
If the chariot is moving without seeing the charioteer also, you can guess it. Charioteer is there inside. If the car is moving, so inside one person is driving that car. Driving force is there. That way, the entire universe you are seeing in different things. Automatically, you have to guess it that one there is a one creator of this universe. If you see the part, you have to imagine Potter was there. Potter was created this one. If you see the cloth, you will definitely think that one cloth weaver is there. One who weaved with the fabrics, this cloth. Like that one, if you see the universe or the world, automatically you will come to the conclusion that one, there is a creator of this universe that will be known by the inference only, logic only. What is the Shastra Yonitam? The question is, why you bring this Shastram here? Anumanenaiva Parameshwara Siddhau Shastrasya ka katha. When the God's existence is proved by the inference itself, why you are saying another Sustram Shastra Yonitvat, only scriptures are proof? Here the Shankara's answer is, inference, no doubt it proves that one creator is existing. Because any created thing, without creator, that will not come out. It is a common, our own experience. We will not see the potter, but after seeing the pot, we will imagine potter was there. If you see the cloth, without seeing weaver also, we have to accept that when it is weaved by the weaver, fabrics are turned into the cloth now. So it is inference, logical guessing. Nyaya Vaisheshika philosophy always emphasizes on this inference only. This is always correct. Even the perception may go wrong. Aankhe thagte hai, that is the correct. Our own eyes only will cheat us. What is existing that may not show, what is not existing that will show our own eyes. It is our own experience. But only Anumana Pramanam, logical guessing, never be wrong. That is, calculations is 100% is correct. Here also the God's existence is proved by the inference. Correct. Shankara says what you said, that is correct. But the here inference gives the existence in general. Someone is existing, but not a Brahman. If you want to know the particular, someone was there to create the entire universe. Because without the creator, the world will not exist. That is the logic. That is correct. But the logic's answer goes up to in general only. Not goes to the as Brahman or Parameshwar. Someone is existing. Someone, not particular. But if you want to know further one more step, who he's creating, I want to know about that one with full characteristics. I want to know about him. Then the answer is Shastra Yonitvat. Only scriptures can answer, not other proofs.
Pratyaksham is ruled out. Pratyaksham always shows what is not existing that will show, and what is existing that will not show. Our own experience we are seeing. And Anumanam also, inference also will show the in general, not particular about. We want to know about particularity of that power. You call it Shakti or whom you call it Parameshwara. That particularity comes by the Shastrani, by the Upanishads only. Tasmadva ye tasmad atmana akasha sambhutah akashad vayu vayor agni agnerapah adhyap. The entire universe was created by him. It has come from him. Like a spider. At the time of Pralayam, he puts himself. At the time of Srishti, he created himself. So that way he is not only Nimitta Karana, at the same time he is Upadana Karana. Nimitta Karana means agent. Potter is the agent for pot. And the weaver is the agent of the cloth. The weaver is turning fabrics into a good cloth. He is giving the shape of the cloth, taking the fabrics. Taking the clay, a potter turns that clay into pot, useful thing. So that way, the God also takes from him and creates the entire universe. Whenever he feels bored, immediately he takes away what he created and puts himself also. So the God is here, not only a creator. Creator means he is creator, no doubt, but two types of kartrutvam, that is Upadana as well as the Nimitta Karanam. Two types of causes himself. He is a Nimitta Karanam, agent of this thing, this work, as well as himself is a Upadana Karanam, material, as Gaudapada already clearly mentioned that when, like a spider, the God creates the entire thing. Whenever he wants, he puts himself the entire universe. That is the greatness that he described. As here also again, Upanishad Pramanam, Shastra Yonitvat. The question is, you are saying that when the entire universe is created by him, how do you believe? The answer is Tattu Samanvayat. The proof this was created by him alone. How do you prove? Means Tattu Samanvayat. You can see in the entire universe his existence. Brahmadi Stamba Pariyantam. The highest Brahma onwards, the small things, Stambam, grass. In all the things also, Samanvayaha is existing. If you want to see, you can see him. He is existing everywhere. Tattu Samanvayat. He is existing in all his products. That itself a proof that one, the entire universe was created by him, is the sustaining that one. Whenever proper time comes, he will dissolve that one. So this way, these 4 sutras, 555 sutras given by the Vedavyasa,
and beautifully decorated that Brahma Sutras while writing the Bhashyam. That is the greatness of Shankara. Writing a commentary means not so easy job. The commentator should do the Parakaya Pravesham. While writing commentary on Brahma Sutras, Shankara should enter it to the body of the Vedavyasa. What Vedavyasa intended meaning of that sutra, that he has to write that one. Very difficult task. But he has succeeded. If you study the 555 sutras, we will enjoy that beautiful, simple Sanskrit. And there is no doubt that type of definitions he was giving. Greatness of that Shankara. So we are lucky enough to study Brahma Sutras in this workshop. Really, I appreciate my brother, Professor Natras, and attended all the students also. Sponsored by ICPR as well as department. So I am thankful to one and all, as well as I offer my salutations to all the noble souls. Thank you, Natras. Thank you. One minute. If you have any doubts also, we can clarify. Yes, please. We already completed 1 hour. One observation or one doubt. Yes. Pretty understood. Gnani has a doubt. They are Brahmasu. Where is the doubt? Where is the doubt? Where we are questioning reference. You must have one, but yeah, you have one. Okay. Ready? Ekam Advitiyam Brahma. The entire thing is only one. There is no other than Brahman. Hello? Live speak. Sir, please speak, sir. So one. Ramya, you are there? He's there. He's there. Okay, Is is there? available? Yes, sir. Okay. Hello. Even though one is existing everywhere, but we are seeing many. Ekoham Bahusyam. That is the desire of the Brahman. Eka Aham. I am only one. But Bahusyam. I should take the many forms. That way creation was started. It is also answered by Shankara only. What is the creation means? Whether it is a Paramarthika Satta or a Pratibhasika Satta or Vyavaharika Satta. Here the Srishti is only Pratibhasika Satta. Why you are not seeing the, when the one is existing, why you are seeing many? The question is. When you are not seeing properly, when your eye is affected by some diseases, even you can see the one moon also, 2 moons or 3 moons also. When your eye is not affected by any disease, you will see the truth only 1 moon.
So here also you are affected by Maya and Ajjasa, from which you cannot come out. You are seeing many. In Pratibhasika Satta, it is reality. What I am saying is very clearly. There is no much difference between Brahma Satyam and Jagan Mithya. Terminologies may differ. For 99% of the people, world is existing. Mithya words are different, but the meaning is one and the same only. We should not think that when it is not existing. It is not existing for only Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda, Ramana Maharshi, that type of sadhakas. But remaining people, for us, everything is existing only. So here is Paramarthika Sattayam only one. But in Vyavaharika Sattayam, many are existing, so we are seeing the many. So Paramarthika Satta is meant for exclusively for great persons. Okay? Over. Yeah. Huh? Yes, sir. Over. Yeah. Oh, okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, Professor Garu. Thank you. They received the talk so well. I mean, it was simple, lucid, and the Sutri was explained. It was comprehensive. समझ में आ रहा था, बहुत simple था. और thank you for your time and thank you, Professor. So now we will move on. The learned professor and senior faculty is here. For all of you, एक interesting question है. Yeah, question. कि consciousness के बारे में, चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म पदार्थ के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज है या नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग पूर्व पक्ष. ब्रह्म नॉलेज, कॉन्शियसनेस का नॉलेज जो है वो प्रसिद्ध है या अप्रसिद्ध? किम तत् ब्रह्म प्रसिद्धं वा प्रसिद्धम अप्रसिद्धं वा? तत् पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम अप्रसिद्धं वा स्यात् यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम्. If you know what is the meaning of inquiry, अतः अप्रसिद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुम्. If it is aprasiddha, not siddha, not known, not in our cognizance, how can you inquire? What does this say? Either if you know, you don't need to inquire. Otherwise, if you don't know, you can't. It's a Purvaksha raised by Shankara himself. That's good for our workshop also. We are requiring all these 7 days nature of consciousness. Uchyate. The answer is Asya tavat brahma nitya shuddha buddha mukta swabhavam sarvajnam sarvashakti samanvitam. And then he goes on to say that sarvasya atmatvacha brahmastitva prasiddhi sarvohyatma astitvam pratyeti. All of us at least accept this much, that I am. Do we accept or do I say that I am not? And Shankara goes on to say, whenever you say I am not, at least the doubting self exists. You have the Descartes language here. At least the doubting self. The greatness of Shankara is Shankara अपना पूरा जीवन इसी पे
व्यर्थ नहीं किया, जैसा बेकार नहीं किया। वो पासिंग कमेंट है। शंकराम ने इतने फिलोसफर्स को एंटिसिपेट किया, देयरफॉर राइट माना जाता है। एंटिसिपेट किया, एक पैराग्राफ में डेकार्ट को डाइजेस्ट करके छोड़ देता है और आगे बढ़ता है, और डेकार्ट का पूरा जिंदगी उसी में वो डाउट करते ही रहेंगे, और संशय आत्मा विनश्यति, रिकॉर्डिंग थोड़ा। तो देयरफॉर शंकरा बहुत सारे फिलोसफर्स को एक पैराग्राफ में एंटिसिपेट करके आगे कर रहे हैं। वो तब ब्रिलियंस इसीलिए उनका महत्व इसी बात में। तो उनका कहना है कि हमें अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को तो डाउट नहीं करना। देयरफॉर आत्मा जब ब्रह्मा, इस आत्मा इज ब्रह्मा, so we have a proof in our own kindness, the I, that I am, maybe because of adhyasa, adhyasa, we identify with the different X, Y, Z, different story, but there is a sense of I, whatever we give the meaning to it. Atma Jat Brahma, and therefore from there he starts to argue, and then goes on to say that workshops ब्रह्मसूत्र पे करना है, शंकरा का कहना, शंकरा पढ़ेगा करेंगे इधर से। इनका कहना है कि ये विचिकित्सा हमें करना है, इसलिए करना है। आत्मन भी तो प्रसिद्ध है हमारे लिए, आत्मा जब ब्रह्मा कंक्लूजन हो चुका है, फिर ये 37 वर्कशॉप इनका कहना है। इस बीच में बहुत सारे मत हैं, वो हमें सम्मत नहीं। बहुत सारे मत यहाँ पे जिक्र होता है। देह मात्र चैतन्य विशिष्टम आत्मेति प्राकृतादिना लौकायुक्ताश्च प्रतिपन्ना मन्यन्ते। बृहस्पति का तो क्या था? तो उनको भी डिस्प्ले करा। He goes on to give several schools. X has this particular understanding, Y has this understanding, Z has this understanding, but none of them are Vaidika. They are not Vaidika Matavaranti, not as per the dictates of the scripture. Here I am establishing a scriptural, authoritative, inclusive understanding of Brahman, and therefore the empire. So, with those remarks, we had the first lecture. We enjoyed listening to Rambuji, though we didn't have him physically here. And now, ICPR will honor the resource persons. Then we go to the talk of Rambuji. हम 10-15 मिनट लेट चल रहे, तो सर का क्लास कल भी है। मैं डिटेल इंट्रोडक्शन कर लेऊंगा सर का आप लोगों से, कितना कि सर संपूर्ण यूनिवर्सिटी से
वाराणसी के वास्तव भी है, बहुत सीनियर फैकल्टी है, well known in the scientific world, in Vedanta philosophy, and his works and details I will provide you. Without much delay, I will now hand over the mic. प्रवर्तन्ते प्राणिनात्सेषु कर्मसु संबंधे परमात्मानं वासानं सर्वे। नमो नवघनश्यामो काम कामित देहिने कमला काम सरुदामो कर्ण काम देहि। इसके पूर्व तक अर्धवैनाशिक जो वैशेषिक है उनके मतदान पूर्व में न्याय मत का न्याय और वैशेषिक दोनों से संबंधित ही उनके कार्य का आधार है उनका। अब इसके बाद वहीं से प्रारंभ होता है अर्धवैनाशिक। हाँ अर्धवैनाशिक वैशेषिकों को इसलिए कहा गया है कि वैशेषिक मत में कुछ पदार्थों को नित्य मान लिया, आकाश काल एवं जो अनित्य पदार्थ हैं पृथ्वी जल तेज वायु इनके परमाणुओं को नित्य मान लिया। तो कुछ को विनाशशील माना, कुछ को अविनाशशील माना, इसलिए उसको अर्धवैनाशिक कहा गया है। अतः अर्धवैनाशिक का पहले ही खंडन कर दिया। अब जो पूर्ण वैनाशिक है, पूर्णतया वैनाशिक जो बौद्ध हैं उनके मत का खंडन करना। तो वहीं तो उपस्थापन हो रहा है कि क्या समुदायाधिकार को कहते हैं, क्या समुदाय के द्वारा ही कार्य की सिद्धि हो सकती है। इतने जो प्रपंच की उत्पत्ति है, जगत की उत्पत्ति है, समुदाय के रूप में मान लिया गया। तो समुदाय दो प्रकार के माना है, इनको एक बाह्य समुदाय और एक आध्यात्मिक चित्त चरित्र आदि आध्यात्मिक। तो लिख रहे हैं सूत्रकार समुदाय उभय हेतु के तद प्राप्ति। यदि उभय हेतु समुदाय को माना जाए, कार्यात्मना दोनों रूप में भी समुदाय को मान लिया जाए, तब भी उसकी अप्राप्ति है, माने वो समुदाय भी नहीं सिद्ध होता। भाष्यकार उसमें लिख रहे हैं कि वैशेषिक राजधानता वैशेषिक सिद्धांत दुर्युक्ति योगा, दुर्युक्ति योग्यता उसमें पहले ही ने बता दिया है। भाष्यकार ने कहा तो वेद विरुद्धत्व, वेद विरुद्ध होने के कारण और वेद विरुद्धत्व अपरिग्रहात उसका परिचय नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसका हमने
इसलिए अपेक्षा। अब अर्ध वैनाशिक जो वैनाशिकत्व, अब अर्ध वैनाशिक को निषेध करके अब वैनाशिक जो पूर्ण वैनाशिक जो आज के बौद्ध हैं उनके मत का खंडन करते हुए दिख रहे हैं। इदानीं उपादयामः वैनाशिकत्व साम्यात् सर्ववैनाशिक जो सिद्धांत बौद्धों का है उनको हम उपादित कर रहे हैं। क्या बहुत प्रकार है ये जो बौद्ध है, बौद्ध के का जो उपदेश था वो उपदेश प्रतिपत्ति भेदात और विनय भेदात। प्रतिपत्ति माने ज्ञान और विनय माने शिष्य। तो जैसे अधिकारी शिष्य हुए, जैसे उनके ग्रहण की शक्ति हुई, उसके भेद से बौद्ध मत जो है 4 प्रकार का, उसमें से कुछ सर्वास्तित्ववादी, कुछ सिद्धांत, कुछ वेदांतियों बौद्धों ने सभी का अस्तित्व स्वीकार किया और कुछ लोगों ने विज्ञान कहते, विज्ञानवादी, विज्ञान ही वस्तु स्वरूप है, विज्ञानवादी का मत है। वो विज्ञान जो भी पदार्थ है वो विज्ञान रूप पदार्थ है, उसका जो बहिर्भाषण है वो मिथ्या है। और विज्ञान के 2 स्वरूप बताया, एक आलय विज्ञान और एक प्रवृत्ति विज्ञान। आसमंतात लियते आलय, जिसमें संपूर्ण वस्तुजात विद्यमान रहता है वो आलय विज्ञान है। और वो जो प्रवृत्ति विज्ञान है उस प्रवृत्ति विज्ञान ही व्यवहार का संपादक है। अन्य पुनः सर्व शून्य शून्यवादी, कुछ सभी को शून्य 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 सभी को शून्य रूप मानते हैं। उसमें से एक सर्वस्तित्ववादिना बाह्याभ्यंतरं च वस्तु अभ्युदर्शन। जो सर्वस्तित्ववादी हैं वो विज्ञानवादियों में है, एक सर्वस्तित्ववादी है और एक विज्ञानवादी। विज्ञान के अतिरिक्त किसी का सत्ता नहीं स्वीकार करता और उन्हीं में से कोई जो है सबको क्षणिक मानता है। प्रत्येक क्षण में विज्ञान उत्पन्न होता है। वेदांत से उनका वैधत्य क्या है? विज्ञान वेदांत में जो वृत्ति रूप विज्ञान है, जो ज्ञान है उसको क्षणिक माना है, परंतु एक आप रूप ज्ञान है, चित रूप ज्ञान है, स्वयं प्रकाश रूप ज्ञान है, वो आत्मा है, वो नित्य शाश्वत है। आत्मा के लक्षण में ही सत्यं ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सद्रूप, चिद्रूप और ज्ञान रूप आत्मा के स्वरूप होगा। विज्ञानवादी बौद्ध को वहां तक पहुंचना चाहिए था जहां तक भगवत्पाद शंकराचार्य पहुंचे। विज्ञान तो उन्होंने कहा, परंतु वो विज्ञान वृत्ति रूप जो विज्ञान है, जो अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति है, वहीं तक जा करके उसी को ही सभी का कारण माना। वेदांत सिद्धांत में, अद्वैत सिद्धांत में भी उस चिद रूप ज्ञान को, आत्म रूप ज्ञान को कारण माना। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पयन्ति यदि संविशन्ति तद् जिज्ञासतु तद् ब्रह्म। तो जिससे उत्पन्न हो करके, जिसमें स्थित रह करके, जिसमें लीन होता है जगत जात, वो जिज्ञासु है, वो जानने का इच्छा का विषय है, जिज्ञासा का विषय है, उसको जानिए। तो आत्मा को उन्होंने उपादान कारण माना।
क्योंकि उपादान कारण और निमित्त कारणों में यही भेद है। उपादान कारण से जिस कारण से कार्य उत्पन्न होकर जिसमें रहते हुए जिसमें लीन होता है उसको उपादान कारण है। निमित्त कारण कार्य का समुत्पादक होगा, जनक होगा, और तो निमित्त कारण है, उनमें कार्य नहीं है। उपादान कारण के नाश होने के बाद कार्य का नाश होता है। वेदांत सिद्धांत में ये भी समझा जाना चाहिए कि वेदांत सिद्धांत ने दो उपादानों को माना है। एक अविद्या रूप उपादान है और एक ब्रह्म रूप उपादान है। तो अविद्या रूप उपादान, ब्रह्म रूप उपादान, दोनों उपादान है जो इस जगत में जात्यता की प्रतीति होती है। और किसी कार्य में जो गुण और धर्म है वो कारण पक्ष में आते हैं। यदि चेतन मात्र कारण होगा तो इस जगत में जड़ता कैसे आएगी? सत्व और तम गुण कैसे आएंगे? तो सत्व और तम ये गुण आते हैं, अविद्या के गुण है, अतः अविद्या भी उपादान है। परंतु इसमें चिद रूपता भी है, प्रकाश रूपता भी है, सद रूपता भी भाषित होती है। घटासन सद रूपता भी भाषित होती है, चिद रूपता भी भाषित होती है। इसलिए उपादान का नाम को ब्रह्म को ही माना। तो दो उपादान हो गए एक कार्य के। तो कैसे दो उपादान? कहा कि जो माया है, विद्या है, ये विद्या परिणाम उपादान है और जो ब्रह्म है वो विवर्त उपादान है। वही कार्य विवर्त भी है। उपादान के सापेक्ष सत्ता होगा, उस उपादान का वो परिणाम है। तो अविद्या सब सत्ता कहे। क्यों? चैतन्य विषय जो अविद्या है, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक अविद्या है, तभी तक एक संसार मोक्षावस्था में संसार नहीं है। इसलिए उसके सब सत्ता है। परंतु जो आपका शुद्ध चैतन्य है वो शुद्ध चैतन्य पूर्व में था, कार्यकाल में भी है, कार्यकाल के विनाश भी है, अतः उसके विषम सत्ता है। उसका लक्षण क्या? उपादान सम सत्ता के कार्यापत्ति परिणाम। जिस कार्य का पादक उपादान सम सत्ता के होता है उस उपादान का वो कार्य जो है परिणाम। जिस उपादान विषम सत्ता के कार्य की उत्पत्ति होती है वो कार्य उस उपादान के अपेक्षा विवर्त है। ब्रह्म कार्य की उत्पत्ति कह रही है, तो बौद्ध को वहां तक पहुंचना चाहिए था, परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने वृत्ति रूप जो विज्ञान है, उस वृत्ति विज्ञान और वृत्ति का जो परिसमाप्ति है वो अविद्या रूप है वृत्ति, वहां तक नहीं पहुंच सके। वो अविद्या रूप की वृत्ति, क्योंकि वृत्ति अविद्या रूप क्यों है कि अविद्या के जायमान जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों का अपंचीकृत महाभूतों का जो सत्वांश समुदाय है वो अंतःकरण है। वो अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। अतः वो जो विज्ञान जिस विज्ञान को क्षणिक मान करके चले और वो वृत्ति विज्ञान था, इसलिए वहां तक भगवान शंकराचार्य यद्यपि आप लोग सब जानते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य के पूर्व में नैयायिकों का भी खंडन
पौधों का खनन न्याय दर्शन के रीति से क्यों नहीं हो पाया? इसलिए कि आपको किसी ने कहा कि हमको प्रयास करना, कहाँ से जाएंगे? इस मार्ग में, उस मार्ग से मत जाइए, वो मार्ग ठीक नहीं, ये मार्ग अच्छा है। इतने मार्ग कखन मार्ग से उस मार्ग का दोष निर्धारित नहीं हो, अपितु उसी मार्ग में जा करके आप बताएंगे कि देखिए यहाँ पर दोष है, यहाँ पर दोष है, यहाँ पर दोष है। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य ने तत्सम ही सिद्धांत का स्थापन किया। यदि आप सो प्रकाश कहते हैं, वो भी सो प्रकाश कहते हैं, परंतु वस्तु स्वयं प्रकाश तो प्रकाशा कहते हैं। वस्तु स्वयं ही अपने स्वरूप का प्रकाशक है, विज्ञान इसलिए तो प्रकाश है, नहीं ऐसा मत है। स्वयं स्वयं प्रकाशा तो प्रकाश है, ऐसा कहेंगे तो स्वयं प्रकाश से स्वयं प्रकाशक सब कर्म भाव का दोष होगा। जो स्वयं करता होता है वो काम नहीं होता है, इसलिए ऐसा मत कहिए, आप तो प्रकाश को कहिए। परंतु अपरोक्ष व्यवहार, अब वो क्योंकि अवेद्य है, अवेद्य कैसे क्या कहते हैं परोक्ष हो सकता है? तो ज्ञान के भी दो उन्होंने स्वरूप बताया। एक फल रूप ज्ञान बताया, फल रूप ज्ञान, एक वृत्ति रूप फल, तो अव्यक्त चैतन्य फलम हो, फल जात्यत्व और वृत्ति जात्यत्व दो प्रकार के विषय को बोलता है। तो वृत्ति का जो विषय होता है हमें तो अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति, उसका जो विषय होता है वो वृत्ति और फल व्याप्ति उन्होंने अभिव्यक्ति चैतन्य जो है वो फल होगा, उस फल का जो विषय होगा वो फल व्याप्ति विषय होगा। अभिव्यक्ति का स्वरूप बताते हैं, इंद्रिय द्वारा विषय सन्निकट मन परिणामात्मिका वृत्ति अभिव्यक्ति, इंद्रिय के द्वारा विषय देश में जो अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति होती है उसको कहते हैं अभिव्यक्ति, और उस अभिव्यक्ति के द्वारा जो प्रतिबिंबित चैतन्य होता है वो फल होता है। आत्मा किसी इंद्रिय का विषय है ही नहीं, तो हम आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं है, अतः फल व्याप्यत्व तो नहीं, तो फल व्याप्य वेद्यत्व को उन्होंने फल व्याप्यत्व रूप वेद्यत्व लिया, तो आत्मा में फल व्याप्यत्व रूप वेद्यत्व नहीं है, तो आत्मा अवेद्य। अब अलोक कैसे होगा? और हम क्यों कह रहे हैं? श्रुति कह रही है यद साक्षात परोक्षात, श्रुति साक्षात ब्रह्म को अपरोक्ष कहती है। अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है उसके अपरोक्ष के कारण ही सकल जगत का सदरूप जो ब्रह्म है उसमें आरोपित होने के कारण ये जगत सत कहलाता है। दृष्टांत में आप लेंगे, लोक में बताने के लिए बताया जाता है, उसी में रजतकार होता है, परंतु सिद्धांतता कहते हैं जो अविद्या है, अविद्या ब्रह्म को ही विषय करती और ब्रह्म में ही रहती, अधिष्ठान की ब्रह्म है। अतः मुक्ति विषय का ज्ञान बातों को पढ़ाते को बता दिया जाता है, परंतु मुक्ति विषय का ज्ञान रजत का उदाहरण छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान ही रजत। दो प्रकार के कार्य हमारे यहाँ है, एक व्यवहारिक कार्य है, व्यवहारिक प्रपंच और एक प्रातिभाषिक। तो व्यवहारिक और प्रातिभाषिक में दोनों में ही अधिष्ठान आत्मा ही, परंतु जो व्यवहारिक प्रपंच है
उसमें निरवच्छिन्न अद्वय आत्मा जो है और जो प्रातिभाषिक है वो उसमें उपहित आत्मा अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान लोक में अधिष्ठान शब्द का व्यवहार आधार में या अधिकरण में कर देते हैं, परंतु ऐसा नहीं। वेदांत में अधिष्ठान शब्द आधार पर नहीं। क्यों? यदि हम अधिष्ठान से आधार लेंगे तो ब्रह्म का आधार होगा, आधार आधे से निरूपित होगा, इसलिए पैसा कर दिया। इसलिए अधिष्ठान को उन्होंने परिभाषित किया, भ्रमोपादान अज्ञान विषयत्वम अधिष्ठान। ये जो भ्रम है सुक्ति आदि को दृष्टांत लेते हैं। सुक्ति आदि जो भ्रम है उस भ्रम का उपादान कारण कौन है? जब तक इदम माने पूर्ववर्ती पदार्थ का जब तक ज्ञान नहीं होता है, साक्षात्कार नहीं होता है, तभी तक रजत का भान है। अतः इदमावच्छिन्न चैतन्य विषय अज्ञान उपादान का धर्म का है और उस अज्ञान का विषय इदमावच्छिन्न चैतन्य। तो वो जो इदमावच्छिन्न चैतन्य में आरोपित रजत है वो चैतन्य इदमावच्छिन्न चैतन्य का धर्म जो इदम का है वो रजत में भाषित होती है। इदम रजतम, इदम का पूर्ववर्ती पदार्थ है, रजत पूर्ववर्ती नहीं है। परंतु इदमता पूर्ववर्तीता किसकी है? वो अधिष्ठान की पूर्ववर्तीता उसमें भाषित। इदम रजतम सत यह भी प्रतीति होती है, तो है ही नहीं, परंतु अधिष्ठान स्वरूप जो इदमावच्छिन्न जो अधिष्ठान है वो सत है, उसकी सत्ता भाषित। इसी प्रकार से यहाँ पर इस प्रपंच में सदरूपता भाषित होती है, किस रूपता भाषित होती है? इसलिए दोनों जिसके उपादान है, अविद्या भी उपादान है और चैतन्य भी उपादान। वहां तक भगवत्पाद शंकराचार्य जब जा करके उनको कहे नहीं ये आपका मत गलत है, क्षणिक विज्ञान नहीं हो सकता है, आलय विज्ञान जिसको आप कह रहे हैं वो आलय विज्ञान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों आपके यहाँ सिद्ध रूप होगा, स्वयं प्रकाश रूप जो विज्ञान होगा उसी को आप अधिष्ठान मान सकते हैं। दूसरी बात उसको और भी तनाव स्वीकार कर्ता भी आप उसी को कहना पड़ेगा। हम तो कर्ता के रूप में कहते हैं, तुम कर्ता के रूप में स्पष्ट उसका उल्लेख नहीं करते हो। हमारी स्थिति कहती है तद इच्छा को हम बहुत ज्ञान हो। तो वो जो ब्रह्म है वो अविद्या की इच्छा आश्रय तया वो उसको करते होता। इसलिए उपादान और निमित्त कारण दोनों अभिन्न होने के कारण उसको अभिन्नोपादान भी कहते हैं। इस प्रकार से बौद्ध के का जो मत था विज्ञानवाद, वहां पर प्रतिष्ठित हो करके उन्होंने उसके मत में प्रतिष्ठित हो करके भूकंप तुलसी को बताया कि कितने कितने प्रकार के आगे इत्यादि भौतिक जो है रूपा है, ये भौतिक मानते हैं, इसमें कोई बात नहीं। भूत हम भी प्रतिष्ठित इत्यादि को मानते हैं। भौतिक भौतिक जितना भी पंचीकृत पदार्थ है सब भौतिक है। अब बात यह है कि उनके यहाँ जाएंगे नैयायिकों के यहाँ, तो उनके यहाँ भी भूत और भौतिक, तो भूत पदार्थ से वो जिनको लेते हैं वो दर्द। इससे बाद जाए जितना भी पदार्थ ज्ञान है घटा पदार्थ इत्यादि परमाणु। अब उसमें बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये भी उसी प्रकार से मान करके चल को कहा, तो ये भी परमाणु को स्वीकार करते हैं, उस रूप में स्वीकार करते नहीं।
क्योंकि न्याय अभिमत यदि परमाणु को स्वीकार करेंगे तो उनको नित्य मानना पड़ेगा, नित्य को मानने के लिए होता है। परंतु क्योंकि भूत को भौतिक उत्पत्ति कहना है तो कोई ना कोई उस स्थिति में पहुंचना होगा, उनको उस दृष्टांत को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पृथ्वी इत्यादि परमाणु को बताया। उन्होंने खर में, खर माने काट और इधर माने दे जो भाग है और पृथ्वी इत्यादि भाव में संगीत होते हैं, इसलिए उनका और रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञा ये 5 स्कंध होगा। रूप स्कंध तो रूप पद से वो इंद्रियादि को लेते, रूप कहते हैं ए भी, ये विपत्ति करके रूप विज्ञान से रूपा इसी चक्षुरादि 5 ज्ञानेंद्रियों को रूप विज्ञान कहते हैं। ये रूप स्कंध है, विज्ञान स्कंध है। अहम अहम यह जो प्रतीति है इसको विज्ञान स्कंध कहते हैं। अवेदना अनिष्ठा के विषय संबंध से जो सुख दुख आदि की प्रतीति होती है संज्ञा और विकल्प ज्ञान जिसमें संज्ञा शब्द का व्यवहार होता है। पद से ज्ञान है संस्कार कर्म अध्यात्म वो अध्यात्म वो अंतःकरण में ही रहने वाले हैं और सकल व्यवहारास्पद भाव संपूर्ण व्यवहार रूपता को प्राप्त करके उनका संहार होता है, मन उनका एक शब्द है। इस प्रकार से जो दो प्रकार की परेशान रहता है अणु हेतु भौतिक संघटित रूपता अणु परमाणु उसमें हेतु है कारण और भूत समुदाय को स्वीकार करके यदि आप चलें तब भी उस समुदाय समुदाय कह रहे हैं वो चेतन है कि अचेतन है, तो समुदायों के चेतन रहने पर समुदाय कैसे निश्चित हो जाए? ये संपूर्ण वस्तुएं जो आपके सामने रखी हुई इनको एकत्रीकरण करना होगा, तो इनको कैसे एकत्रीकरण होगा, कैसे उत्पन्न होगा? इसके लिए कोई ना कोई चेतन चाहिए। इस प्रकार से अचेतन जो तंतु है उस तंतु का समुदाय पट है, उसके लिए तंतुवाद चेतन की आवश्यकता होती है। आपके यहाँ संपूर्ण चेतन है समुदाय, तो उनका समुदाय कैसे एकत्रित होगा? समुदाय की प्राप्ति है क्योंकि वो भी स्वयं चेतन होते हैं, क्योंकि चेतनों का भी समुदाय हो पाता है। जैसे किसी का भी एकत्रित होकर के हो जाती है, हो जाती है। परंतु जब आपका समुदाय अचेतन है तो उनका समुदाय कैसे बन पाए? इसलिए चेतन की आवश्यकता है। आपको हम पहले बता दिए थे, सुधाकर को न भेजना था, हम तो आपको बताइए थे
अरे राम राम, ये पूर्ण में आपको कैसा दिया है और वो क्या भेज दिया वैसे है मैडम, आएंगे आराम से आएंगे, देख के आएंगे। अरे यार समुदाय नाम समुदाय। अब देखिए इसका भी ज्वलन है, तो इसका भी ज्वलन है वो समुदाय के अधीन है और समुदाय भी आपका नहीं सिद्ध हो पाया तो आपका कोई भी जो है कार्य जो भक्ति आप कैसे कर सकते हैं। अन्य से असती का देखना दूसरी बात जिनके अस्तित्व भी आप किसी को स्वीकार किए होते इन समुदायों के अस्तित्व भी किसी भी चेतन को आप स्वीकार किए चेतन भोक्ता प्रशासनिकता स्थिर किसी को भी आप चेतन स्वीकार किए होते तो उस चेतन के द्वारा इस अचेतन समुदायों का समुदाय हो सकता था। आप तो स्वीकार ही नहीं। आपका जिस समुदाय से आप कह रहे हैं कि हम वैदिक सिद्धांत को उस मत को न स्वीकार करके इस प्रकार निरपेक्ष प्रवृत्ति करने का प्रवृत्ति अच्छा आप स्वीकार करते हैं किसी का आवश्यकता नहीं। चेतन निरपेक्ष जो है हम प्रवृत्ति इनके मान लेते हैं तो भैया चेतन निरपेक्ष उनकी प्रवृत्ति मान लेंगे समुदायों का समुदाय रूपता तो चेतन निरपेक्ष मान लेंगे तो प्रवृत्ति उपकरण ठीक है वो ऐसा इकट्ठा होंगे दृष्टांत आप उसी को ले सकते हैं। मेढक को यदि आप तोड़ना चाहें तो चार को रखेंगे तो दोनों फूट जाएंगे। तो यदि कोई अन्य चेतन नहीं इन्हीं को निरपेक्ष भी आप उनको इकट्ठा सुधर जाएंगे समुदाय का निबलेंगे। उसको बहुत सरल ने कहा कि निरपेक्ष माने चेतन निरपेक्ष भी अचेतन भी आप प्रवृत्ति मान लेते हैं समुदाय प्रवृत्ति तो ठीक है प्रवृत्ति अनुवरण प्रवृत्ति की अनुवृत्ति भी हो जाएगी वो जिस प्रकार की इकट्ठा होंगे उस प्रकार यदि चेतन अन्य होंगे तो चेतन अधीन ही उसकी उनकी समुदाय बना है और चेतन अधीन ही उनका वियोग आशय क्या भी अन्य नहीं आशय वही आलय विज्ञान नहीं आलय विज्ञान बोले आलय विज्ञान में ये एक प्रधानता है एक वैशिष्ट आलय विज्ञान का कि उस आलय विज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण अचेतन समुदायों का समुदाय हो ठीक है। वो बताइए तो आपका आलय विज्ञान एक वाक्य में ही से प्रश्न पूछ जाता अच्छा जो आलय विज्ञान है वो आपका चेतन है नहीं वो चेतन नहीं है अन्य को चेतन मानेंगे उसके लिए तो जिसको आप चेतन मान रहे हैं वो हमारे जैसा जो वैदिक सिद्धांत में अभिमत जो चेतन साधक चेतन तो होगा नहीं तो उसके लिए अन्य चेतन मानना पड़ेगा तो उसके लिए अन्य अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए लिखा कि आशय से अन्यत्वाभ्याम अनिर्विकार अन्य है उसका विजात निरूपण नहीं करता क्यों क्यों अरे भाई आप तो क्षण के न मानेंगे आप स्थिर कहां से मानेंगे तो जब आप क्षणिक मानेंगे तो एक क्षण में आप दूसरे क्षण में रहेगा तीसरे क्षण
प्रवृत्ति अनुपत्ति। दूसरी बात, क्षणिक पदार्थ में व्यापार होता नहीं। व्यापार जो है, व्यापारवत्ता स्थिर पदार्थ में होती है। भगवान का द्वारे विज्ञान है, उसको आप क्षणिक से अस्तित्व नहीं मानेंगे। क्षणिक विज्ञान आपका प्रवृत्ति रूप है और आलय रूप है। कोई स्थिर विज्ञान तो आपके यहाँ है नहीं, तो आपका उससे भी उत्पत्ति नहीं होती। तो निर्व्यापार प्रवृत्ति, जब निर्व्यापार होगा तो उसमें भी कोई भी प्रवृत्ति समुदायों के समुदाय में तो नहीं पाएगी। तस्मात् समुदाय अनुपत्ति, इसलिए समुदाय ही अनुपन्न है आपके द्वारा। समुदाय के अनुपन्नता के कारण आपके यहाँ समुदाय ही अनुपन्न है। तो समुदाय से जो आप कार्य करना चाहते हैं वो कार्य ये जो है समुदाय तत्व तथा प्रयास वो यात्रा। और जब समुदाय अनुपन्न होगा तो समुदाय आश्रित जो लोक यात्रा है, लोक यात्रा इसलिए आप लोग का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत आपका स्पष्टतया जो युक्त है ऐसे कार्य की प्रक्रिया है, न तो व्यवहार। अब सूत्र में स्थापन कर रहे हैं नमस्कार। इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेतना उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। कहा यदि आप ये कहें कि इतरेतर माने परस्पर, प्रत्यय प्रतीयते प्रत्यय प्रतीत विषय भूतत्व, यदि उत्पत्ति आप कह देंगे, कहा नहीं, उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, वो उत्पत्ति की निमित्तता तो उससे हो सकती है, व्यवहार की निमित्तता उससे नहीं हो सकती। यद्यपि उसी को पद को उठा करके आगे खंडन करते हैं। यद्यपि भोक्ता प्रशासिका कच्चित चेतना व चेतना चेतता शुरू ना विलंबते। कहते हैं कि ठीक है, हम भोक्ता प्रशासिका, प्रशासन करने वाला, भोग करने वाला, कोई चेतन संहार करने वाला, कोई चेतन स्थिर पदार्थ को हम नहीं। फिर भी अविद्या की नाम, अविद्या अविद्या इतरेतर कारणों परस्पर कारण होने के कारण कार्य की प्रवृत्ति व्यवहार का संपादन। लोग यात्रा अविद्या को वहां पर बताया अविद्या कितने हैं। अविद्या संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, पदार्थ, स्पर्श, चेतना, कृष्णा, जाति, जरा, का ये जो है परस्पर कारण भाव है। ये कारण भाव से कार्य संपादन हो सकता है। लोग यात्रा क्वचित संक्षिप्ता निर्दिष्टा, इनका कहीं कहीं बौद्ध सिद्धांत में संक्षेपेण निर्देश है और कहीं कहीं प्रपंच से इनका स्वरूप का वर्णन किया है। इसलिए हमको उनके मत का खंडन केवल करना है। यदि हम संक्षेप रूपता विषय और बृहद रूपता की वर्णन करेंगे तो उन्हीं का शास्त्र हो जाएगा। हमको तो जो ये बताना है कि बौद्ध मत में अविद्यादि को इतरेतर का कारण मान करके लोक यात्रा का संपादन किया है। उसमें सर्वेषामपि अयम अविद्याकलापः अप्रत्याख्यः, सभी बौद्धों के मत में अविद्यादि का जो समुदाय है उसका प्रत्याख्यान नहीं किया है। चारों मतों में कहीं पर संक्षेप रूप में, कहीं पर विस्तार रूप में
प्रयोग इत्यादि कराते। अब परस्पर निमित्त नैमित्तिक भावेन घटी यंत्रवत् अविनाशम वर्तमाने अर्थात चित्त उपन्ना संघाता। इस प्रकार से अविद्यादि समुदाय में परस्पर निमित्त निमित्तक भाव, कोई निमित्त है, कारण है, कोई कारण है, स्वीकार कर लिया तो देखते हैं। तो घटी यंत्रवत् अविनाश वर्तमान में, घटी यंत्र में जिस प्रकार से अविनाश रहता है, हमेशा चलती रहती है, आप उसके जाते तो उस अर्थ से अक्षित उत्पन्न जो है संघात यदि आप स्वीकार करें, उसमें कहते हैं करना। क्यों? अरे वो तो उत्पत्ति मात्र के प्रति हेतु हो सकता है। अब उत्पत्ति मात्र के प्रति हेतु होगा ना संघात का उत्पत्ति हो, परंतु उत्पन्न जो संघात है, यदि उत्पन्न संघात है, यदि संघातस्य किंचित निमित्तम, कहा संघात का भी तो कोई उत्पत्ति के लिए तो निमित्त हो जाएगा, परंतु उत्पत्ति का उत्पन्न जो पदार्थ है उनके संघात के लिए निमित्त कौन होगा? तो समुदाय है, उनकी उत्पत्ति के प्रति तो हेतु हो जाएगा। और संघात के लिए हेतु किसको कहेंगे? संघात फिर भी बिना चेतन के नहीं बनता, न तो अवगत है, संघात उनका अवगत होगा नहीं। यथा इतरेतर प्रत्यय अविद्यादान पूर्व उत्पत्ति मात्र भवे न तो संघात हो सकते, क्योंकि इतरेतर प्रत्यय मानने पर भी अविद्या का पूर्व उत्तर के प्रति उत्पत्ति मात्र के प्रति हेतु हो सकता है, न तो संघात हो सकते। संघात उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो संघात उत्पत्ति के लिए कोई आप निमित्त कहना होगा, तो आपको चेतन को कहना होगा। विद्या भी चेतन, ना तुम्हारे यहाँ ना हमारे यहाँ कोई विद्या ननो विद्यादि अर्थात चित्त से संघात कहा, अविद्यादि से अर्थात चित्त संघात मानने कहना। अब यदि तावत अहम अभिप्राय विद्या गया संघातम करेगा आत्मान कहा किसलिए इत्यादि ये अनुसार पत्ते हम संघातम कैसे, क्या अभिप्राय है आपका कि अविद्यादि जो है संघात के बिना अपने संघात के बिना अविद्यादि का स्वरूप ही उपलब्ध नहीं। तो विद्यादि स्वरूप पत्या जो है संघात विचार कर लेंगे अपेक्षण से संघातन संघात निमित्तम। अब क्या अविद्यादि इस स्वरूप की प्रतिपत्ति नहीं होगी जब तक संघात नहीं हो। अतः उनके स्वरूप की अनुपत्या जो है संघात से कार्य करेंगे। ठीक है, संघात निमित्त अविद्यादि के प्रति हो गए ना, अविद्यादि के प्रति संघात निमित्त हो गया, अविद्यादि जो है कार्य के प्रति निमित्त हो गए। तो संघात के विषय में ही हम पूछ रहे हैं, संघात के कारण कौन होगा? चेतन के बिना संघात संघात का तो निमित्त आपको कहना होगा। तस्य नित्येषु अनुषु अभिगम्यमानेषु आश्रयाश्रयी भावेषु रूपेषु तत्सु संभवयुक्तम वैशेषिक परीक्षायां। यदि आप कहें नित्य परमाणु को हम मान रहे हैं, उनमें आश्रयासी भूत में संभव तो कहा कि ऐसा है
एक वैशेषिक सिद्धांत में सब भूत है परमाणुवाद का खंडन कर, अब उसके इतिहास मत परमाणु उनके यहाँ चेतन नहीं, परमाणुओं में जो क्रिया ईश्वर इच्छा क्रिया उत्पन्न होती है, क्रिया से जो है नाश होता है, वो नाश विभाग होता है, विभाग होने के बाद जगत में संयोग होता है, संयोग से जो है उनका की उत्पत्ति होती है। परमाणुओं को चेतन उन्होंने भी नहीं स्वीकार किया, यदि परमाणु के अधीन जाओगे तब भी संघात की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। परमाणुओं का जो संसारी के रूप में संघात है, उनके यहाँ जो है न्यायिकों के यहाँ भी ईश्वर को माना, ईश्वर की इच्छा के अधीन जो क्रिया पैदा होती है, प्रक्रिया से जो विभाग के ऊपर संयोग होकर के संसारी की उत्पत्ति होती है। तुम परमाणु के यहाँ जाओगे तो मानो ना, यदि तुम एक बार भी कह दो तुमने चेतन स्वीकार कर दिया तो हमसे कोई आपके सकती, हमको कोई दोष नहीं, तो चेतन तुम स्वीकार तो करो, चेतन नहीं स्वीकार करोगे यदि परमाणु पढ़ने से जाओगे तब भी तुम्हारी गलती नहीं होगा। ये मंगला सुना दूसरी बात, उन्होंने तो परमाणु को नित्य माना है, तो आप क्षणिक मानते हैं, तो आप क्या परमाणु भी होंगे, तो क्षणिक परमाणु के अधीन होकर के आप संघात की उत्पत्ति करना चाहें तो संभव नहीं है। अधर्मान अभिप्राय विद्या या संघात, हम अविद्या को भी कोई संघात करने कथम तमेव आश्रितात्मानं बहुमानं तस्मिन् निमित्तत्वम्। अरे आपका सिद्धांत आप पूर्व में कह रहे हैं कि अविद्यादि का स्वरूप निश्चय नहीं होगा, अविद्यादि का स्वरूप निश्चय नहीं होगा संघात से बिना, इसलिए संघात को आप माने और उसी संघात के प्रति अविद्या को कहा, तो फिर स्थिति यही हो जाएगी कि पुत्र के प्रति जिस प्रकार से पिता कारण है, तो पिता के प्रति भी पुत्र भी कारण हो जाएगा, उसके पिता की सत्ता ही नहीं होगी। आपाशय दोष ये है, आपाशय दोष इसलिए हमें यहाँ कर देते हैं, आपाशय दोष लक्षण होता है, इसलिए आपाशय दोष यहाँ अन्योन्याश्रय दोष तो क्या करते हैं, अन्योन्याश्रय दोष तो क्या करते हैं कि संघात के अधीन अविद्या, अविद्या के अधीन संघात, इसलिए इसको अन्योन्याश्रय दोष होता है। उत्पत्ति तक अपने ज्ञान के अधीन जिसका ज्ञान हो उसके ज्ञान हो, और या उत्पत्ति को अन्य आत्माशय इसलिए नहीं कहेंगे, आत्माशय अभी दोष तो लक्षण के यहाँ, हाँ लक्षण दोष का, तो इसलिए यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि अविद्यादि का स्वरूप जिस संघात के अधीन है वो संघाते विद्या के अधीन होगा, वो अन्योन्याश्रय, तो अब तो माने अपनी जो व्यक्ति माने ज्ञान, उसी ज्ञान के अधीन जिसका ज्ञान वो जो है अन्योन्याश्रय। ऐसा उत्पत्ति, तो उत्पत्ति अविद्यादि को उत्पन्न मानते हैं क्षणिक होने का, तो अविद्यादि की उत्पत्ति के अधीन संघात की उत्पत्ति, और संघात के अधीन जो है विद्या की उत्पत्ति, अन्योन्याश्रित कार्य जो है नहीं करते, अन्योन्याश्रित कार्य अपना जो संघात है तथापि संघाता संघातांतरम उत्पद्मानं न्यूनेन वात। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम इतनी देर बोलेंगे परंतु कोई किसी को आपत्ति हो तो फिर हमारे ऐसे नहीं जाना, हम संघात को ही संघात अब बताइए
का एक जो संघात है उस एक संघात से दूसरे संघात की उत्पत्ति तुम छलते रहना। तो अब कहीं दृष्टांत में देना होगा तो एक बीज संघात से दूसरे बीज की फिर तीसरे बीज की एक एक क्षण में जैसे उनका भी ये तो जो कार्य के अव्यवहित पूर्व व्यक्तित्व जो कारण आप कहते हैं कि कार्य के पूर्व में रहना, तो कार्य के पूर्व में रहना ये न कह करके कार्यापूर्वम क्यों नितना अर्थ है। इसलिए तो कुसूलत रखा हुआ वो प्रत्येक क्षण में न प्रत्येक क्षण देखिए आप लोग विद्यार्थी आप लोग समझे रहिए एक क्षण के बाद होगा और एक क्षण के बाद हम लोग भी क्षण के बाद प्रत्येक क्षण में परिवर्तनशील प्रत्येक वस्तु को मानते हैं, परंतु उनका क्षण के बाद हमारा क्षण के बाद हमारे यहाँ क्षण परिवर्तन है, परिवर्तनवाद। प्रत्येक वस्तु क्योंकि वृद्धि ह्रास अपक्षय ये हमारे यहाँ का विकार है वस्तु को, क्योंकि एक ही शरीर को बहुत ज्यादा परिवर्तन तो 5-7 साल पहले हमारे यहाँ से गया है तो मिल जाता है काम करता है पड़ेगा तो अपना ही आप चित्र भारत बनकर देखेंगे तो समझ नहीं आएगा कि हमारा ही है। तो ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ परिवर्तन बाद क्षणिक बात है, उनके यहाँ दूसरा उनके यहाँ पूरा वस्तु नष्ट होकर के दूसरा। अब बात यदि संपूर्णतया मैंने एक कालीन घट पूर्णतया नष्ट होकर के दूसरे क्षण में दूसरा उत्पन्न हो तब कहते हैं कि प्रतिज्ञा कहते हो स्वयं घटा जो वही घट है तो मैं कल देखा था ये प्रतिज्ञा कहते हैं तो प्रतिज्ञा को कहते हैं प्रतिज्ञा प्रमाणी प्रतिज्ञा ध्यान बहुत अच्छा प्रतिज्ञा ध्यान के लिए बहुत अच्छा उनका तर्क है। ये जो लाभ होती है ना दीप लव होती है तो दीप लव में एकाकार प्रतीति होती है कि नहीं, यही दीप है जब प्रतीति होती 2 क्षण 3 क्षण होती है कि नहीं, और वो दीप एक नहीं क्योंकि प्रत्येक जो कण है उस कण से उदित हुई अलग अलग है। अयर कण हो या जो ईंधन जो भी ईंधन है चाहे तेल रूप में हो गैस रूप में हो प्रत्येक ईंधन से जायमान अलग अलग न हो स्वयं दीप कलिका ये प्रतीति होती है इसको प्रमट है। इसलिए स्वयं घटा यह जो प्रतीति है प्रतिज्ञा उनका जो है तो कुसूलत जो बीज है तो कुसूलत बीज प्रत्येक क्षण में नष्ट होकर के दूसरा पैदा तो जो प्रथम बीज का नाश है वो उत्तर बीज का कारण है, नाश कारण अभाव कारण। और कहते हैं कि काल से अव्यवहित मानिए तो काल से अव्यवहित पूर्व बीज का नाश वो कारण और सत्ता कारण कहीं तो नहीं।
सबसे पहले बौद्धों को आगे बढ़ के अब पीछे तो अब पीछे आर्थिक रहित ये आगे तो वहां पर देखिए यहाँ पर नहीं कहते हैं कि आप कहते हैं कार्य के अव्यवहित पूर्व में हमें कार्य रहना बताइए प्राग भाव भी कारण है कि नहीं? तो प्राग भाव उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व में उत्पत्ति कालावच्छेद हाँ तो कहते हैं कि कारण पूर्व समाधि जो है कार्य काल में कारण पूर्व समाधि का सत्य चाहिए। तो कहा कार्य जो है जब घट की जिस काल में पैदा हो रहा है उस काल में चक्र चीवर पुराणादि के रहते हुए घट का प्रागभाव है नहीं है क्योंकि घट उत्पत्ति क्षणावच्छेद भी प्रागभाव न हो। तो जब कारण पूर्व समाधि के असमोधान दशा में घट इस काल में पैदा हो सकता है तो उन्होंने कहा यदि कारण का असत कार्य अधिकार के प्रति हेतु है तो उसके व्यवहित पूर्व में कैसे नहीं कार्य पैदा हो जाता तो उसके प्रति खंडन कार्य है कि आपके यहाँ जो घट पैदा होता है घट तो उत्पत्ति काल में क्या संपूर्ण कारण पूर्व समाधि रहती है नहीं कह सकते हैं क्योंकि घट उत्पत्ति कालावच्छेद घट प्रागभाव नहीं है। तो जब घट उत्पत्ति कालावच्छेद कारण पूर्व समाधि न रहने पर भी घट उत्पन्न हो जाता है तो अन्य काल में क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता? आपके यहाँ क्या युक्ति है? जो युक्ति आपके यहाँ है वही युक्ति हमारे यहाँ है। इसलिए कारण का सत्य कारण नहीं है अभी तो कारण कार्य से अव्यवहित होना कार्य के अव्यवहित जो है वो भाव रूप बताना है वो है। इसलिए आप प्रत्येक बीज तो कहते हैं कि ये बताइए अंकुर के प्रति कौन सा बीज कारण है? का अंकुरोत्पत्ति अव्यवहित पूर्व में जो नष्ट बीज है वो कारण है। बीज तो नष्ट हो रहा है प्रत्येक क्षण में। अब 2 साल जितने दिन बीज रखा रहा 4 महीना 6 महीना उसमें कितने क्षण हुए उतने क्षण वो नष्ट हो रहा है और अपने अपने उत्तर बीज के प्रति कारण हो रहा है। परंतु अंकुर उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व में जो बीज नष्ट हुआ है वही बीज का नाश कारण है। आप बीज को कारण मानेंगे बीज को कारण मानेंगे किन रूप में बीज का कारण मानेंगे? बीज को समवाय कारण कहना होगा आपको निमित्त कारण तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि अंकुर के प्रति निमित्त कारण ईश्वर को माना है नैया बैठने से भी माना है ना क्योंकि किसी अंकुर को दृष्टांत लेकर के न्याय मत में ईश्वर का अनुमान किया तो उसके प्रति निमित्त कारण तो आपने ईश्वर को मान रखा है। अब आप बीज को उपादान कारण मानेंगे उपादान कारण उपादान नहीं कहते हैं समवाय को माने का समवायी कारण कहते हैं जो समवाय को नहीं मानते वो उपादान तो समवायी कारण हो या उपादान कारण हो तो कार्य तो उपादान में रहेगा ना। अब वो जो अंकुर उत्पन्न हुआ वो किस में रहा क्योंकि तो बीज नाश में यदि अंकुर रह सकता है तो बीज नाश यदि अंकुर का कारण हो सकता है तो हमारे धन्यवाद में आप लोग क्या करते हैं ये उनका जो है साधन है। अब वो कहते हैं संघात से संघात की उत्पत्ति आगे पहले बताइए कि संघात से संघात अंतर की उत्पत्ति होती है तो सदस्य ही कोई पदार्थ जो भी आपके पास है प्रत्येक क्षण ये
की उत्पत्ति कर, नष्ट हुआ एक क्षण में दूसरा कार्य सिद्ध कर, उसका नाश दूसरे का। अब इसमें भगवता शंकराचार्य कह रहे हैं यदि संघात से संघातांतर यदि आप उत्पत्ति होती है तो सदस्य उत्पत्ति होती है, तो ये नियम में व्याप्ति है, जहां जहां संघात उत्पन्न होगा सदस्य ही होगा, विसदस्य नहीं होगा, या अनियम है। अनियम है माने कहीं पर विसदस्य होगी होता है, कहीं संघात से संघातांतर की उत्पत्ति होती है तो उसी संघात के सदस्य होती है। अनियम कहेंगे तो विसदस्य ही होती है, विसदसम तो करेंगे। यदि आप नियम स्वीकार करें, नियम माने एक संघात से दूसरे संघात की में उत्पत्ति होती है, तो क्या होगा? अरे ये तो आप भी मानते हैं मनुष्य शरीर से कि नाश हो करके अन्य शरीरों की उत्पत्ति होती है, तो नियम में उद्धर कहते हैं पूरे पे नष्टते उद्धर उत्पन्न विनाशकारी उद्धर जो शरीर मनुष्य का जो शरीर है वो मनुष्य शरीर संघात के नष्ट होने के बाद नियम सदस्य ही उत्पन्न होगा, तो नरकादी योनि माने अन्य शरीर की उत्पत्ति कैसे हो, ऐसे सबको एक शरीर का परित्याग होने के बाद शरीर प्राप्त होता है, बाकी मानते हैं। अब दूसरा शरीर नहीं प्राप्त होगा, हमें जिस प्रकार के हम हैं जो भी है हमारा ये शरीर नष्ट होगा तो दूसरा भी मनुष्य का जन्म होगा और इसी प्रकार का होगा। यदि कोई व्यक्ति नष्ट होकर के जन्म दिया है तो पहचानने में कोई नहीं होगा, क्योंकि सदा उत्पन्न होगा। वहाँ मनुष्य भी शरीर यदि प्राप्त होगा सदस्य उत्पन्न होगा। और यदि आप नियम नहीं है, यदि आप स्वीकार करें कि नियम नहीं है तो नियम न स्वीकार करने पर मनुष्य को अरे हाँ, तो प्रारब्ध परिसमाप्ति के बाद मनुष्य का शरीर नष्ट होगा और आपके यहाँ तो सब क्षणिक है, तो एक क्षण में अभी हम मनुष्य हैं जो हाथी हो जाएंगे, घोड़ा हो जाएंगे, क्योंकि नियम तो है प्रत्येक क्षण में आपका नियम। यदि नियम होता कि एक संघात से दूसरा संघात तो ठीक है, उसमें संपत्ति दिया, एक संघात से दूसरे संघात की उत्पत्ति कहते हैं, तो मनुष्य आदि का जो शरीर है वो कभी भी पशु आदि के शरीर में नहीं परिवर्तित होगा। और यदि आप अनियम मान रहे हैं तो आप यहाँ प्रत्येक क्षण में तो अभी बैठे बैठे हो जाएंगे, हम सिंह हो जाएंगे तो ढक्कन हो जाएगी, इनका हम जाएंगे फिर हाथी हो जाएंगे। उसी को उन्होंने कहा कि अनियम पक्ष मानने पर मनुष्य व भूया प्राप्त उभयमपि अद्भुतम नहीं होता, क्योंकि दोनों पक्षों में आपके यहाँ अतिशा यद भोगार्था संघाता जो भोग निमित्तक संघात नहीं करते जो नास्ति गुरु भोक्ता जीव नास्ति गुरु भोक्ता तथा जीवमा, वो संघात जो है वो जीव नहीं, जीव नास्ति वो जो भोक्ता है वो भोक्ता को आप शरीर मत करें, भोक्ता शरीर का जीव नास्ति स्थिर, परंतु वो स्थिर नहीं। चाय पीने वाला मंगाने वाला जीव चाय आई जो भोक्ता है वो क्षण में हो गया, इसकी तो है नहीं भोक्ता आप कैसे क्षण के बाद
जो है तो नहीं मिलेगा। तथा भोगो भोगादेव नान्येन प्रार्थनीय। तब क्या करना होगा आपको? भोक्ता क्षणिक है। अब भोग ही भोगाधनिमित्तक हो जाएगा। जब भोक्ता आपका क्षणिक है तो भोग को क्षणिक भोगे को आप कहेंगे, तब भैया नान्येन प्रार्थनीय भोग है, वो जब भोगे भोगार्थ है तो किसी के द्वारा प्राप्त कैसे होगा? तथा मोक्षो मोक्षो मोक्षाथा एवं मोक्षा नाम है। और मोक्ष भी मोक्षा भी मोक्ष हो जाए, मोक्ष ही मोक्षार्थी हो जाए। मोक्षा नाम है तो मोक्षा भी दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं होगी। अनेक से प्राप्त भयम भोग मोक्ष काल दोनों को मानते हैं, दोनों को प्राप्त मानते हैं। तो भोग मोक्ष काल अस्थायी कोई न कोई पदार्थ को मानना पड़ेगा। और अवस्थायी प्रेक्षण का द्वारा विलंब होगा। यदि किसी को भी अस्थायी आप मानते हैं तो आपका पत्नी मात्र अविद्यादि नाम यदि भवेत् भवतु नाम इतरेतर उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व अविद्यादि का रहे तो रहे, परंतु न तो संघाता से भोग मात्र भावाद और एक प्रतीत समुत्पाद का एक हम सामान्य लिया लेते हैं विपत्ति सिद्धांत। तो प्रतीत माने ज्ञान, ज्ञात्वा समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद। तो जिन वस्तुओं का ज्ञान है तो ज्ञात होकर के उनकी उत्पत्ति, अथवा प्रतीत माने ज्ञान विषय भूत का उत्पादन माने वह प्रतीत समुत्पादन हम क्या करते हैं। ये व्याख्या भी हम मानते हैं। तो हमारा जो सृष्टिवाद है भगवता शंकराचार्य, वो प्रतीत समुत्पादन सृष्टिवाद माने यह दृश्यते तदेव सृष्टि, जो दिखाई देता है वही सृष्टि है। सुसुप्ति में काम सुसुप्ति को वेदांत में महाप्रलय को ही महाप्रलय अद्वैत वेदांत माना। तो जो दिखाई देता है वही सृष्टि है, वो प्रतीत संसार। परंतु उन्होंने प्रतीत संपादक की व्याख्या अनुपादन जो करता होती है उससे असक्ति जब लोग करते थे सत्य को करते थे, अर्थात इससे क्या सिद्ध हुआ? हम लोग देख रहे तब सत्य तब सत्वम तद भावे तद भाव अन्वय का विचार हो या व्यतिरेक का विचार हो, इस समय वो कारण नहीं हो। अनेक पुरानी कारण सामग्री के रहने पर घर की उत्पत्ति होती है और उसके न रहने पर घर की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए चक्र केवल पुरानी समुदाय जो है वो कारण। तो जो उन्होंने बौद्ध सिद्धांतों में जो किया है वो अन्वय व्यतिरेक का,
प्रतिबिंब समुत्पाद। इसलिए हमने देखा है तब आएगा वैसे हमारे पास में आएगा, तो इसलिए बताते हैं कि उनका जो शब्दावली प्रतिबिंब समुत्पाद, तो प्रतिबिंब समुत्पाद यदि हम संस्कृत करेंगे तो दृष्टि दृष्टिवाद हो, परंतु उनके सिद्धांत ने यही कहा है कि जिसके रहने पर कार्य उत्पत्ति हो और जिसके रहने पर ना हो वही प्रतिबिंब समुत्पाद, और प्रतिबिंब समुत्पाद ही उनका जो है एक मुख्य है कार्य के लिए माना है, ये प्रतिबिंब समुत्पाद है। और और जानना होगा कोई क्वेश्चन? व्यक्तिगत ज्ञान और फलों के व्यक्तिगत ज्ञान में जो अंतर है वो अगर इससे अलग विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान उसमें फर्क है। वृत्ति कहते हैं माने इंद्री का सन्निकर्ष हुआ प्रत्यक्ष शक्ति, जिस विषय का इंद्री के सन्निकर्ष हुआ उस इंद्री का उस विषयाकार इंद्री सन्निकर्ष से इंद्री प्रणाली के द्वारा जो संस्करण है वो विषय देश में जाता है, तो विषय देश में जाता है तो विषयाकार अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति। देखिए वेदांत सिद्धांत में जिसको अन्य दर्शनों में ज्ञान कहा है उसको हमारे यहाँ वृत्ति का, परंतु अन्य दार्शनिकों ने उसको ज्ञान मान करके चलते इंद्रिय सन्निकर्ष से जायमान हो या व्यक्ति ज्ञान से जायमान हो वो वृत्ति ही है। हमारे यहाँ वृत्ति को ज्ञान माना, परंतु वृत्ति जो है जलात्मिका है, वस्तु का प्रकाशक नहीं। तो वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, व्यापक जो हमारा चैतन्य है, आत्मा चेतन रूपा व्यापक है, तो जो ही वृत्ति वो वृत्ति में उसका प्रतिबिंब पड़ गया वो वृत्ति प्रकाश। तो ना तो केवल चेतन ज्ञान है हमारे यहाँ, परंतु व्यवहारोत्पादक वस्तु प्रकाशकता चेतन में नहीं, चेतन रूपात्मक ज्ञान क्यों सर्वत्र चेतनम अविद्या, सर्वत्र जो चेतन रूप ज्ञान है आत्म ज्ञान अविद्या से आबद्ध है, तो अविद्या से बद्ध है तो अंतःकरणावच्छेदन कैसे आबद्ध हो गया। तो आज के घरों में अलमारियां हैं, अलमारियां जो है चारों तरफ से बंद है और सामने शीशा लगा, तो शीशा भी तो काष्ठ है, व्यक्ति का है, तो उससे आबद्ध क्यों नहीं हो रहा है आपका वो, तो अंतःकरण भी अविद्या से जायमान पंचीकृत महाभूतों से जायमान है अंतःकरण, इसलिए वो भी कण है, परंतु स्वच्छ होने के कारण आत्मा के स्वरूप का जो है आवरण नहीं कर पाता है, तो अंतःकरणावच्छेदन जो है अनावृत रहता है, इसीलिए प्रकाश प्रकार से वृत्ति के फल भेद अलग अलग बताए। तो वृत्ति के फल भेद अलग बताते हुए उन्होंने बताया कि चेतन हमारे हमको आता हुआ जो हमको नहीं आता आपको नहीं आता, क्योंकि जिन वस्तुओं का प्रकाश यदि चेतन मात्र को वस्तु का प्रकाश करता है तो जो हमको ज्ञात है, जो वस्तु जो विषय हमको ज्ञात है पूरी आत्मा नहीं वह पूरी ज्ञात है, तो सभी सर्वज्ञ होंगे तो सभी असर्वज्ञ। इसीलिए वृत्ति जब हम कुछ बोलते हैं तो शब्द से वो वृत्ति होती है, और उस वृत्ति में जब प्रतिबिंब चैतन्य का पड़ता है विषय का पड़ता है
तो आत्मा को अहम ब्रह्म जो अंडाकार है धरती का विषय माना। हर व्याप्ति क्या है, हर रूप ज्ञान क्या है, हर रूप ज्ञान आप ये समझिए सामान्यतः कि जो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है वही हर रूप ज्ञान। अव्यक्तम चैतन्यम फलम भवति नैव अव्यक्तिश्च इंद्रिय द्वारा विषय सन्निकट मना परिणाम तब बताइए आत्मा का जब इंद्रिय से सन्निकट नहीं तो विषय माने आत्म सन्निकट परिणाम तो आत्मा हर रूप ज्ञान का विषय है। हर रूप जो ज्ञान है का विषय है उसी को वेद पद्धति उसको ही वेद पद्धति कहा। इसलिए आत्मा व्यक्ति का विषय होती है, हर रूप ज्ञान का विषय ना होने कारण देख नहीं, इसलिए आत्मा में आवेश कहा। इसलिए और अपरोक्ष विभाग करते हैं हम विभाग करते हैं शुद्धता है श्रुति कहती है जब आप जब साक्षात को इसलिए अपरोक्ष प्रमा प्रमा का पहले फिर अपरोक्ष प्रमा चैतन्य वेदांत अप्रत्यक्ष प्रमा चैतन्य नहीं है क्योंकि यदि साक्षात अपरोक्ष श्रुति कहती है तो आगे भी विज्ञानवादियों के यहाँ एक प्रवृत्ति माने व्यवहार का संपादन है और एक जो वो ज्ञान है जिसमें विषय सभी सन्निहित है। तो एक प्रवृत्ति विज्ञान एक अलग है। तो प्रवृत्ति विज्ञान वो हमारे जो वस्तु बाहर बहिर्भाषण उसमें ज्ञान करना है और जो न भाषण हो तो होने के समय पर वस्तु भी समान उसका भी ज्ञान करना। आप बात बोले दिखाई देती तो वो वस्तु विज्ञान बाहर कुछ है उसमें दो एक तो बाहरी वस्तु का कोई सत्ता ही नहीं स्वीकार करता है और एक कहता है कि बाहरी वस्तु है हमें और एक कहता है कि नहीं बाहरी वस्तु है ही नहीं विज्ञानवादियों में तो विषय है आपका ख्याति तो एक ही ख्याति और उस एक ही ख्याति को एक ख्याति और एक अख्याति और उसी में फिर हम भेद करते ख्याति माने धर्म न ख्याति मानिए था अख्याति अख्याति वाला केवल प्रभाकर। अब एक ख्याति कोई तरह भेद कैसे हो गए तो जो ख्याति जो भ्रम है बेटा उसके विषय के भेद से उस ख्याति का भेद होगा। ठीक है ख्याति माने भ्रम तो उस भ्रम के विषय को जो आत्म रूप माना विज्ञान रूप माना विज्ञान क्या और इन्होंने भ्रम के विषय को सतरूप माना। सतरूप जो है ये आप मानते हैं विशिष्टा जी रामन वो कहते हैं कि सुक्ति के अवयव में जो रजत दिखाई दे रहा है वो रजत सत ही पैदा हुआ। कैसे ऐसा है कि पंचीकरण हो चुका है ना तो पंचीकरण हो जाने के कारण इस सभी पदार्थों में हो गए नहीं हो तो वो जो सुक्ति के अवयव है उस सुक्ति अवयव में पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा रजत अवयव भी है तो रजत अवयव
जब सही सही पैदा हुआ तब नेदम रहतम अक्रतम नास्ति निषेध कैसे होगा? अरे उसमें व्यवहार रहता है, व्यवहार में हर योजना इसके कारण प्रवृत्ति होती है और नेदम रहतम से व्यवहार रहता का बात हो जाता है। निदम रहतम व्यवहार रहना व्यवहार माने जिनके धर्म के मत जिनके आचार्य के सिद्धांत के ख्याति का विषय सत्य है जो आपके जिनके जिनके मत में अन्य नहीं असत मानते हमारे जो लोग धर्म का विषय सही नहीं मानते उनके मतलब क्या हो गई असत्य अब आइए नहीं जाए हाँ नैयायिक भी सत्य ख्याति बात नैयायिक कहते हैं कि भाई ऐसा कोई विसंवादी ज्ञान तो होता है परंतु विसंवादी ज्ञान का कोई विषय होता है वेदांती लोग जाने। तो ये जो रजत की प्रतीति होती है किस रजत की प्रतीति होती है कहा भैया कौन सा सन्निकर्ष रोग है? तो कहते हैं कि ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष पूर्व में ज्ञान जिसका हुआ जिस प्रकार से चंदन खंड को देख करके उसमें सौरभ की प्रतीति हो जाती है। रसगोलक जब देखते हैं तो अपने आप लगता है कि मीठा है ना, मीठा की प्रतीति। उसी प्रकार से ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष ऐसा है तो हाथ कष्ट रजत है तो हाथ कष्ट रजत है तो उसकी प्रतीति कैसे होनी चाहिए? हाथ कष्ट प्रतीति होनी चाहिए ना। इदम रहतम हाथकम ये प्रतीति होना चाहिए ना। पूर्ववर्ती कैसे प्रतीति हो उस रजत में अंगठात्व आ गया। पूर्ववर्ती के साथ संबंध हो जाने संकर्ष हो जाने का अंगठात्व हो गया तो वो जो हाथ का सत्य उसको प्रतीत होना चाहिए था वो पूर्ववर्ती प्रतीत होता तो रजत में अंगठात्व आ गया। और जो पूर्ववर्ती है सुक्ति ये सुक्ति को सुक्ति का पेन प्रतीत होना चाहिए था तो दोनों में अनर्थात्व आने के कारण रजत हाटकस्थ रजत में अनर्थात्व होने के कारण पूर्ववर्ती में अनर्थात्व होने के कारण ये जो प्रतीति होती है ये अन्यथा प्रतीति है ना। इसलिए अन्यथा ख्याति पद में इसको कहा जाता है। ये भी सत्य है इसलिए बौद्धों के यहाँ भी सत्य ख्याति है। इसलिए से व्याख्यान हो रहा था क्योंकि विज्ञान आत्मा और सत्य है। विज्ञान के रूप में जो रजत प्रतीत सत्य है परंतु विज्ञान की प्रतीति है और ये भी सब ख्याति हुई ये भी सब ख्याति हुई। इसके बाद आपके ये आते हैं तो वेदांती अनिर्वचनीय ख्याति। ये जो रजत उत्पन्न हुआ है करना तो सत्य है। सत्य तो आप समझेंगे सत्य दो प्रकार के प्रसिद्ध न्याय में अन्य दर्शनों में योग में सत्तावान को सत्य कहते हैं। वेदांत दर्शन में सत्तावान को सत्य नहीं सत्य पद से जहाँ पर विवक्षित है तो सत्यम ज्ञान मानतम पद से सत्य दिया है तो सत्य का अर्थ का बाधित अबाधितत्वम सत्य जो बाध नहीं है वो सत्य है। तो ये जो रजत है ये बाधित है तो सत्य तो सत्य। असत पद से अन्य शास्त्रों में अभाव को कहा
हमारे यहाँ असत परिचय कहा है, सत्येन प्रतीक हिंदी में आप लिखेंगे, जिस वस्तु की कहीं पर भी सदरूप में प्रतीति नहीं है वो असत पदार्थ, ठीक है ना बेटा। तो देखिए वो कौन होंगे, आकाशपुष्पादी होंगे जिनकी सदरूप में प्रतीति नहीं होती है, और इसकी सदरूप में प्रतीति होती है। तो इसलिए असत भी नहीं है, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, तो सदसत नहीं है, तो निर्वचनीय कहाँ से होगा। साधु है के साथ साधु है ना, साधु है ना, ग्राहक है ना, साधु है तो काम नहीं, तो सत का निर्वचन हो सकता है, असत का निर्वचन हो सकता है, और जो सत सत दोनों नहीं है उस वस्तु असत का निर्वचन, इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है, ऐसा वो अनिर्वचनीय है। यही अनिर्वचनीय भी है, अनिर्वचनीय संसार भी है, ये अनिर्वचनीय जाति है। और अन्य के यहाँ हमारे यहाँ संपूर्ण ख्याति है, यही सबसे वैशिष्ट है। अन्य दर्शनों में सबको ख्याति नहीं कहा है, हमारे यहाँ आत्मज्ञान के अतिरिक्त सकल ख्याति सब धर्म है ना। कुछ जो है आत्मज्ञान के पूर्व में बाधित हो जाता है, और कुछ आत्मज्ञान के उत्तर में बाधित होता है। बाधित सभी को होना है, अप्रतीत सभी होते हैं, इसलिए सब हमारे यहाँ ख्याति है, यथार्थ आत्मज्ञान है, आत्मरूप है, आत्म विषय है। आत्म विषय का जब ज्ञान होगा वो मिथ्या, आत्मरूपता जो ज्ञान की है, ज्ञान वो रूप जो है वो आत्मा। जहाँ पर विषय भाव होगा वहाँ द्वैत होगा, वहाँ मिथ्या। इसलिए व्यक्ति से विशिष्ट जो आत्मा है, व्यक्ति विषय जो धर्म है वो क्योंकि व्यक्ति विद्यमान है, वही कराएगा ना, इतना ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे विद्वान लोगों को देखना, आपके संपर्क में आना, ये उद्देश्य था।